جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمام ماسٹر صاحب حضرات کا اپنے چینل ونلی فار ایجوکیشن پہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ آپ کا کلاس سکشمتا 5 کا شروع ہو چکا ہے، اور ہم نے آپ کو اب تک ویڈیو نمبر 2 ہی تک پڑھایا ہے، اور یہ آپ کی ویڈیو نمبر 3 ہے جو میں آپ کو بالکل بیس اور بیسک پڑھا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے تمام ویڈیو کو باری باری سے سن لیا تو انشاءاللہ امتحان میں کوئی آپ کو پاس ہونے سے نہیں روک سکتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پڑھا دیا ہے قواعد کسے کہتے ہیں، موضوع کیا ہے، محمل کیا ہے، لفظ کیا ہے، کلمہ کی کتنی اقسام ہیں، سب ہم نے آپ کو پڑھا دیا ہے۔ آج پڑھیں گے ہم چیپٹر نمبر اسم معرفہ کے اقسام۔ اور ہمارا یہ بھی طریقہ رہا ہے کہ جب آپ کو ہم پڑھاتے ہیں تو ڈیفینیشن بتانے کے بعد، تعریف سکھلانے کے بعد ہم آپ کو کوشچن کیسے بورڈ میں بنتا ہے وہ بھی میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں۔ تو پہلے آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی رحم کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہے اسم معرفہ۔ اسم معرفہ کسے کہتے ہیں اور اس کے اقسام کتنے ہیں؟ تو پہلا کوشچن آپ کو بنے گا اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 5 6 7 آپ چنیں گے۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7 قسمیں ہیں۔ کون کون ہیں؟ پہلے دیکھ لیجئے۔ نمبر 1 عالم ہے، نمبر 2 ضمیر ہے، 3 میں اس میں اشارہ ہے، اور 4 میں آپ کا اس میں موصول ہے، اور 5 میں اس میں معہود ہے، اور 6 میں اس میں مضاف ہے، اور 7 میں اس میں منادہ ہے۔ ان تمام کو بالکل ڈیپلی اور تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ بس آپ سے بات اب گزارش ہے کہ ویڈیو کو انت تک دیکھیے تاکہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے اس میں معرفہ کے 7 قسمیں۔ نمبر 1 عالم۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ کسی انسان کے نام کو ہی عالم کہتے ہیں۔ کسی انسان کے نام کو عالم کہتے ہیں، جیسے احمد، وسیم، ہمالیہ، یا کسی بھی چیز کے نام کو ہم عالم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو خاص سمجھنا نہیں ہے، بس جان لیجئے کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی انسان کے یا کسی بھی چیز کے نام کو عالم کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے ضمیر، اور یہ نمبر 2 والا جو ہے دیکھ رہا ہوں سکشمتا 1 2 3 4 تک سب میں یہ کوشچن پوچھا گیا ہے۔ کوشچن کیسے بنتا ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا، پہلے سمجھ لیجیے۔ ضمیر وہ اسم معرفہ ہے، ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو کسی اسم کے بدلے میں آئے، کسی اسم کے بدلے میں آئے۔ سنیے گا دھیان سے، ضمیر وہ اسم معرفہ ہے، وہ اسم ہے جو کسی اسم کے بدلے میں آئے۔ اسم کے معنی بھی نام، عالم کے معنی بھی ہوتا ہے نام۔ اس کے لیے وہ، تم، ہم، میں، یہ سب کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ جیسے کہا جائے گا وہ کہاں ہے، تو وہ کہاں ہے اس سے مطلب ہے کہ کسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، نام نہیں دیا ہے تو نام کی جگہ پر آیا ہے۔ تم کہاں تھے، نام نہیں رکھا اور تم کہہ دیا گیا۔ تو ضمیر اسی کہتے ہیں جو نام کے بدلے جو لفظ آئے وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ اور یہ آپ کے 6 ہوں گے، میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سن لیجئے گا۔ نمبر 1 میں وہ، 2 میں ہے تم، اور 3 میں آئے گا میں، اور 4 میں آئے گا ہم۔ 4 میں آئے گا ہم۔ یہ 4 ہو گیا۔ اب اس میں بھی ہے اس آئے گا، اس کو مارا، اس، یہ بھی ضمیر ہے۔ یہ بھی ضمیر ہے۔ اس، جیسے کہ وہ، تم، اس، یا، میں اور ہم، یہ 6 ہیں۔ یہ 6 کیا ہے؟ یہ ضمیر میں آتے ہیں۔ تو یاد کرنا ہے کہ ضمیر وہ اسم ہے جو کسی اسم کے بدلے میں آئے۔ امتحان میں آتا ہے، جیسے کہ اگزامپل دوں میں آپ کو، امتحان میں آئے گا راشد آیا وہ گیا، راشد آیا وہ گیا، اس میں ضمیر کا انتخاب کیجیے، ضمیر چنیے۔ تو وہ ہے ضمیر کی جگہ پر، راشد آیا
वह गया, तो जाने वाला राशिद है, तो उसकी जगह पर क्या आया, वह आया है। याद रखना है शॉर्ट कोड में, वह, तुम, मैं, हम, यह, उस, ये 6 में से कहीं में किसी सेंटेंस में आता है और पूछता है कि इसमें ज़मीर को चुनिए, तो बोलेंगे कि यही ज़मीर है। उस, इस, यह, हम, तुम, मैं, ये 6 को नोट कर लेना ध्यान में, ये ज़मीर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में, इसमें इशारा। इसमें इशारा वह इसमें मारफा है जिसके ज़रिए किसी चीज़ या इस्म की तरफ इशारा किया जाए, जैसे कि यह, वह, ये क्या है, इसमें है, इसमें इशारा है। यह लड़का, वह लड़का, उसने कहा, ये सब क्या है, ये ज़मीर है। यह, वह, उस, यह, वह, उसमें क्या है, इसमें इशारा है। जिससे किसी चीज़ की तरफ या किसी इंसान की तरफ हम इशारा करते हैं, वो क्या है, इशारा है। इसे मौसूल वही से मारफा है जिसको वस्फी जुमला के ज़रिए माना पहनाया जाए। इसे मौसूल वही इसमें मारफा है जो जिसको वस्फी जुमला के ज़रिए माना पहनाया जाए, जिस शख्स या जिस जगह। ये इम्तिहान में सक्षमता 3 में आया था कि इसे मौसूल की पहचान कीजिए, और आप मेरे साथ जुड़ते हैं, हमसे PDF लेते हैं, राब्ता कायम करते हैं, तो सक्षमता 1, 2, 3, 4 में जितने क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि पिछले वाला सवालात, मैं आपको इंशाल्लाह उसको भी दूंगा, पहले मुकम्मल आपके पढ़ने के बाद, ताकि आपको समझ में आए इसको प्रैक्टिस करने का। तो जिस शख्स, जिस जगह, ये क्या है, इसमें मौसूल है, जिसके ज़रिए से हम किस चीज़ तक पहुँचते हैं। नंबर 5 में देख रहे हैं, इसमें माहूद वह इसमें मारफा है जो गुफ्तगू के करीने से किसी ख़ास वजह से ख़ास आदमी या ख़ास चीज़ को बताए। माहूद कहते हैं जो बातें हमारी आपके जहन में चल रही है, जो आप बोलेंगे तो बोलने वाला ही समझेगा कि किसके बारे में बोला जा रहा है, उसको बोलते हैं इसमें माहूद। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोल रहे हैं कि मेरा दोस्त आया, तो मेरा दोस्त आया, जो शख्स बोलेगा वही समझेगा किस दोस्त के बारे में कह रहा है। अमीर दोस्त के बारे में, गरीब दोस्त के बारे में, नज़दीक वाले दोस्त के बारे में, या दूर वाले दोस्त के बारे में। तो इसको बोलते हैं इसे माहूद, जो हमारे जहन में बात चल रही है, हम किसी के बारे में बोलना चाहते हैं, तो वही समझेगा जो बोल रहा है कि मेरा दोस्त आया, तो दोस्त कौन सा है, किस दोस्त को कह रहा है, तो उसको बोलते हैं इसमें माहूद। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 6 में क्या है, मुज़ाफ वह इसम मारफा है जिसके ज़रिए उस इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की जाए। उसको आप अपने भाषा में यूँ समझिए कि मुज़ाफ वो कहते हैं कि मुज़ाफ जिसकी इजाफत की जाए, जिसको जोड़ा जाए, और मुज़ाफ इलैहि होता है जिसके तरफ जोड़ा जाए। मुज़ाफ जिसको जोड़े, जिसकी निस्बत करें, और मुज़ाफ इलैहि जिसके तरफ निस्बत करें। फॉर एग्जाम्पल, ज़ैद की टोपी, अहमद का बेटा, राशिद की लड़की, है ना, गरीब का बेटा। तो जो का, के, की जो आ रहा है, ये मुज़ाफ है। क्या है, मुज़ाफ इलैहि की पहचान है। का, के, की या तरफ जो बोलते हैं वो क्या है, मुज़ाफ इलैहि की तरकीब है, उसकी पहचान है। जैसे बोल रहे हैं ज़ैद की लड़की, ज़ैद की लड़की, तो आप बताइए ज़ैद की लड़की जो हम बोल रहे हैं, ज़ैद की लड़की, तो लड़की की, ज़ैद की टोपी बोल रहा है, तो टोपी की निस्बत किधर रही है, ज़ैद की तरफ। बताया जा रहा है कि टोपी जो है ज़ैद की है ना। तो मुज़ाफ वह इसमें है जिसके ज़रिए उस इस्म की निस्बत दूसरे तरफ की जाए, दूसरी तरफ। तो ज़ैद की टोपी, तो इसमें हो जाएगा टोपी की निस्बत किधर है, ज़ैद की तरफ है, तो ज़ैद की टोपी, तो टोपी मुज़ाफ और ज़ैद मुज़ाफ इलैहि, ज़ैद मुज़ाफ इलैहि और टोपी मुज़ाफ। तो टोपी की निस्बत की जा रही है, टोपी के लगाव बताया जा रहा है, टोपी को इशारा किया जा रहा है किस तरफ, ज़ैद की तरफ। तो पूछेगा इम्तिहान में कि राशिद की लड़की, ज़ैद की टोपी, उसका लड़का, ये कौन सी तरकीब है, बोलेंगे मुज़ाफ इलैहि की तरकीब है, जिसमें का, के, की आए, वो मुज़ाफ इलैहि की तरकीब है।
ٹھیک ہے. تو جاننا ہے کہ مضاف وہ اسم ہے جس کے ذریعے اس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے. تو جس کی طرف وہ مضاف الیہ ہے اور جس کو جوڑا جائے وہ مضاف ہے. جیسے زید کی ٹوپی میں ٹوپی مضاف ہے اور زید کیا ہے مضاف الیہ ہے, کیونکہ ٹوپی کو زید کی طرف موڑا گیا ہے, زید کی طرف جوڑا گیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں نمبر 7 میں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, امتحان میں بھی کوشچن 3 میں آیا تھا. منادا کسے کہتے ہیں؟ منادا وہی اسم معرفہ ہے جس کو پکارا جائے. جس کو پکارا جائے وہ منادا ہے اور جس لفظ سے پکارا جائے وہ ندا ہے. سنیے دھیان سے, جس کو پکاریں گے وہ منادا بولے گا اور جس سے پکاریں گے وہ بولے گا ندا. ایگزام کے طور پر یہاں لکھا ہے اے لڑکے, اے لڑکے, تو ہم نے لڑکے کو پکارا لفظ اے سے, لفظ اے سے. عربی میں آئیے, یا محمد بیڑا پار لگانا صلی اللہ علیہ وسلم. یا محمد جو آپ نے بولا ہے مانا ہوتا ہے کہ اے محمد. یا خدا مانا ہوتا ہے کہ اے خدا. تو جس لفظ سے ہم خدا کو پکار رہے ہیں وہ ندا ہوگا اور جس کو پکار رہے ہیں منادا ہوگی. یا خدا میں یا ندا اور خدا منادا. بھوجپوری میں آئیے, اپنے بہاری بھاشا میں آئیے, اے لڑکا, وہ لڑکا, رے لڑکا بولتے ہیں نا, تو جیسے بولتے ہیں اے لڑکی تو اے ہو جائے گا ندا اور لڑکی منادا. وہ لڑکا وہ ہو جائے گا آپ کا ندا اور لڑکا منادا. یا خدا یا ندا اور خدا منادا. یا خدا مانا ہوتا ہے اے خدا, یا خدا کا مانا اے خدا. یا محمد اے محمد. یا عمر اے عمر. تو یا عربی لفظ ہے اور اے جو ہے اردو لفظ ہے. تو جس لفظ کے ذریعے کسی کو پکارتے ہیں وہ ندا ہے اور جس کو پکارتے ہیں وہ کا ہے منادا. جیسے ہم بول رہے ہیں اے ماسٹر صاحب, اے ماسٹر صاحب, تو ماسٹر صاحب کو ہم پکار رہے ہیں اور لفظ اے سے پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اے ماسٹر صاحب, اے ندا اور ماسٹر صاحب منادا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ کو یہ ٹاپک پڑھا رہا ہوں تو آپ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا. نیکسٹ دیکھتے ہیں اب کیا پڑھنا ہم کو. اس کے بعد آئیے عالم کی کتنی قسمیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہر سال اس میں سے ایک کوشچن یا 2 کوشچن امتحان میں آپ کے آتا ہے. عالم کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا تھا شروع میں, علم کے معنی ہوتا ہے نام. کسی شخص کے نام کو جو اوریجنل نام ہے, اصلی نام ہے, اسے بولتے ہیں علم. یہاں آپ کو بڑے ایک اچھے انداز سے سمجھاؤں گا, آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اور یاد رکھیے گا کہ گرامر ماسٹر صاحب سمجھنے کی چیز ہے, رٹنے کی چیز نہیں ہے, اور بڑے اچھے انداز میں انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. تو علم کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں. امتحان میں کوشچن آ جائے علم کی کتنی قسمیں ہیں تو بولیں گے 6 قسمیں ہیں. اور کہیں کہیں امتحان کے اندر علم کے 5 قسمیں بھی بتایا گیا بک کے اندر. اب وہ کیسے؟ اوریجنل یہ مان کے چلیے کہ علم کی قسمیں جو ہے 5 ہی ہے, لیکن کہیں کہیں 6 مانا جاتا ہے. تو وکلپ میں آپ کو 5 اور 6 دونوں ہو تو 6 پر ٹک ماریے گا, اور صرف 6 ہو تو 6 پہ ماریے گا, یا صرف 5 ہو تو 5 پر ٹک آپ کو مارنا ہے. سمجھاتا ہوں کیسے. دیکھیے, علم خاص. نمبر 1 علم خاص. اصلی نام کو کہتے ہیں علم خاص. جیسے آپ کا نام راشد ہے, آپ کا نام رشید ہے, آپ کا نام نسیم ہے, آپ کا نام موسیم ہے, آپ کا نام دانش ہے, آپ کا نام اقبال ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا اوریجنل نام ہے. ایک آدمی کا یہ اوریجنل نام جس کو ماں باپ نے پیدائش کے وقت میں اس کا نام کسی استاد سے کسی مولانا سے رکھوایا, اس کو بولتے ہیں علم خاص, اوریجنل نام. مان لیجئے نسیم کو ہی لے لیجئے. نسیم ایک نام ہے. اب نسیم کے 5 نام اور بنیں گے. 5 نام اور بنیں گے. کیسے بنیں گے؟ نسیم جو لڑکا ہے اس نے کیا کیا, اس کی جب پیدا ہوا تو ماں باپ نے نام رکھوایا نسیم. یہ آپ کا علم خاص ہو گیا. علم خاص. دھیان سنیے گا, صرف ایک بار آپ کو ویڈیو کو مکمل سننا ہے. انشاءاللہ اس ٹاپک کے بعد ویڈیو کو بند کروں گا مکمل سمجھانے کے بعد. تو جو بچہ پیدا ہوا تو ماں نے نام رکھا وسیم, ماں نے نام رکھا نسیم, ماں نے نام رکھا رشید. ہو گیا نام اوریجنل. اب یہی نسیم ہے یا یہی رشید ہے یا وہی وسیم ہے جو نام رکھا گیا تھا, یہ آگے جب بڑا ہوا, جوان ہوا, پڑھائی کیا اور پڑھنے کے بعد سے ایک اچھا کارکردگی کیا لکھت روپ میں, یعنی کہ آپ اچھا لیکھک بن گئے نسیم, یہ کلاکار بن گئے, یا جس وبھاگ میں آپ نے جس
माहौल में आपने अपने आप को आजमाया, एक निखर करके आप सामने आए और आपकी कारकर्दगी और आपके हुनर और आपकी कला हुकूमत की निगाह में पहुंची। सुनिए ध्यान से, हुकूमत की निगाह में पहुंची, हुकूमत ने आपके कामों से खुश होकर के आपको अपने तरफ से एक नाम दे दिया, उसी नाम को हम बोलते हैं खिताब। खिताब किसको मिला? नसीम को मिला, और नसीम आपका आलम ख़ास है, यानी ओरिजिनल नाम है जिसको माँ बाप ने आपका रखवाया था। और नसीम के अच्छे काम के बना पे हुकूमत तक पहुंची बात, तो हुकूमत ने आपको अपनी तरफ से एक नाम दे दिया जिसको बोलते हैं खिताब। तो मालूम गया कि हुकूमत से तरफ से जो नाम दी जाती है उसको बोलते हैं क्या? खिताब। जैसे सर सैयद बोलते हैं ना, तो सर सैयद जो है ना, सर सैयद अहमद खान बोलते हैं। अहमद उनका नाम था, अहमद खान जाति बिरादरी था, और सर जो है अंग्रेज ने उनको एक टाइटल दिया था। तो हुकूमत की तरफ से, हाकिम या हुकूमत की तरफ से या बड़े बड़े लोगों की तरफ से जो नाम मिलता है किसी को, उसको बोलते हैं खिताब। याद कीजिएगा, खिताब किसे कहते हैं? हुकूमत, हाकिम, हुकूमत या किसी बड़े लोगों की तरफ से जो नाम दिया जाता है किसी इंसान को, उसको बोलते हैं खिताब। तो नसीम को क्या खिताब मिला? सर का मिला, खान बहादुर का मिला, इनको खिताब हो गया। अब आगे चल करके फिर क्या हुआ? वही नसीम जिसको हुकूमत ने नाम दिया तो खिताब हो गया। अब नसीम जो अपने इलाके में रहते हैं तो एक अच्छा काम करते हैं, लोग गरीबों की खिदमत करते हैं, बेसहारों का सहारा बनते हैं, बेवाओं के साथ देते हैं, तो इनके अच्छे काम के बना पर लोगों ने अपने तरफ से एक नाम दे दिया, आवाम ने, पब्लिक ने, तो उसको बोलते हैं लक़ब। समझ मेरी बात? कि माँ बाप ने जो नाम रखा वो आलम ख़ास है, और हुकूमत से आपके अच्छे काम के बना पे जो नाम मिलता है उसको खिताब बोलते हैं। और आवाम के तरफ से जो आपके अच्छे काम हो या एक बुरा काम आपने किया है, तो आवाम की तरफ से जो नाम आपको मिलता है उसको बोलते हैं लक़ब। ये भी इम्तिहान में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मान लीजिए आप अच्छा काम करते हैं तो लोग अच्छा बोलेगा, और आपने अगर गलत काम किया, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं या किसी को लूटपाट करते हैं, तो आप लोग चोर बोलेगा, डाकू बोलेगा, बदमाश बोलेगा। तो मालूम हुआ कि आवाम की तरफ से जो भी नाम मिले आपको अच्छे काम की बना पे तो अच्छा नाम, और बुरे काम की बना पे तो बुरा नाम, तो आवाम से मिलने वाले नाम को लक़ब कहते हैं। ये 5-6 डिफिनेशन पढ़ाने के बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और मिसाल से समझाऊंगा कैसे इम्तिहान में क्वेश्चन बनता है। पहले वीडियो को सुनते चलिए आप। 3 हो गया। एक हो गया आलम ख़ास जिसको माँ बाप ने रखा था, दूसरा हो गया खिताब जो हुकूमत से मिला था या किसी बड़े आदमी की तरफ से मिला था, और तीसरा हो गया आवाम की तरफ से आपके अच्छे या बुरे काम के बिना पे। 4 में ये उर्फ किसे कहते हैं? असली नाम के अलावा जो मुख्तसर नाम, छोटा नाम, शॉर्टकट नाम जो माँ बाप प्यार से दे देते हैं या गांव वाले आपको पुकारते हैं उस नाम से, जिस नाम से आप प्रसिद्ध हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं उर्फ। जैसे कि आपका नाम है फजलुर रहमान, लोग बोलते हैं फजलुआ या फजलू बोलते हैं, आपका ये उर्फ हो जाएगा। आपका नाम कुछ और है लेकिन लोग प्यार से बबलू बोलते हैं, डबलू बोलते हैं, पिंटू बोलते हैं, पिंकी बोलते हैं, मिंटू बोलते हैं ना। तो जो नाम से आप मशहूर हो जाए, जिससे लोग आपको जानते हो, ओरिजिनल नाम से हट करके नसीम ही को लोग, बबलू नसीम है उसको बबलू बोलते हैं प्यार से लोग। जैसे कि कोई लड़का है बहुत गोरा है, नाम कुछ और है, उसको बोलते हैं सोनू, बोलते हैं सोना की तरह है। तो जिस नाम से आप मशहूर हो जाएं उसको बोलते हैं उर्फ बोलते हैं। उम्मीद कि आपको मेरी बात ये चारों आपको समझ में आ गई होगी। फिर आपको मैं दोहराऊंगा, री करूंगा, पहले आप पूरे तक सुन लीजिए आप। अब आया 5 में क्या? तखल्लुस। आप वही जो नसीम है जिसको हुकूमत ने नाम दिया तो खिताब बन गया, अवाम ने नाम दिया तो लक़ब बन गया, और किसी एक काम के बिना पे आप जिस नाम से अब जाने जाते हैं, मशहूर हो गए हैं, तो आपका उर्फ हो गया। अब वही नसीम शायरी लिखता है, गज़ल लिखता है, नज़म लिखता है, तो आखिर में अपने असली नाम से हटकर एक छोटा सा नाम दे देता है, जिससे अपने के उर्दू अदब में, शायरी के फ़न में उस नाम से वो जाना जाता है, उसको बोलते हैं तखल्लुस। तो मुख्तसर नाम नंबर 5 में तखल्लुस, वह मुख्तसर नाम, वो शॉर्टकट नाम, वो छोटा नाम जो शायर हजरात अपने अशार में अपने असली नाम की जगह लिखते हैं, उसको बोलते हैं तखल्लुस। क्लियर समझा रहा हूँ आपको। जैसे कि मिर्ज़ा गालिब है, मीर है, तो मीर अमन है, तो गालिब जो है यह उनका नाम नहीं है,
नाम है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, इंटर पढ़ा होगा, अपने बच्चों को पढ़ाया होगा। गालिब नाम नहीं है, गालिब क्या है, तखल्लुस है, क्योंकि इनका असल नाम है असदुल्लाह खान, असदुल्लाह खान, ठीक है ना, असदुल्लाह नाम है, लेकिन गालिब से मशहूर है। तो जब ये नज़म लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं या शायरी लिखते हैं, तो आप लास्ट में क्या लिखते हैं, गालिब लिखते हैं, गालिब लिखते हैं। तो लिहाजा हो गया तखल्लुस, यानी मालूम हुआ कि अपने असली नाम से हटकर शायर अपने अशार या नज़म गज़ल के लास्ट में जो छोटा एक नाम देता है, उसी नाम को हम तखल्लुस कहते हैं। क्लियर, क्लियर। आगे देखते हैं नंबर 6, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कुन्नियत। लोग पढ़ता है कनीत, मैंने देखा किसी को पढ़ाते यूट्यूब पे, पढ़ाई मुकम्मल उनकी नहीं है, समझ में नहीं आता, लत उठा लिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, लिखता है, वो बोलता है कनीत। गलत बात है, पढ़िए कुन्नियत, ये अरबी लफ्ज़ है, आपको हर जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वालिफाइड टीचर हों, सनद याफ्ता हों, उनसे पढ़िए, जो आपको अल्फाज भी सही सिखाएंगे, ताकि आपको इम्तिहान में कामयाबी के साथ साथ आप बच्चों को सही लफ्ज़ पढ़ा भी सकें। क्या पढ़ेंगे, कनीत नहीं, कुन्नियत। नंबर 6 में है कुन्नियत, जिससे रिश्ते का पता चले उसे बोलते हैं कुन्नियत। जैसे ये 6 लफ्ज़ हैं, इन 6 लफ्ज़ को आपको रखना होगा, जब भी आपके एग्जाम्पल में आए और पूछे क्या है तो बताएंगे कुन्नियत। जैसे इब्न, इब्न का माना होता है बेटा, लिख लो इसको, इब्न माने बेटा, बिन्त माने बेटी, अबू माने बाप, अबी माने बाप, माने माँ, के माना चचा। 6 देख लिया। अब आता है एग्जाम्पल में, इम्तिहान में, इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, बिनते मोहम्मद, मोहम्मद की बेटी, अबू हुरैरा, हुरैरा के बाद उम्मे सलमा, सलमा की माँ, अम्मे मन, मेरा चचा, है ना। तो ये 6 लफ्ज़ में से कहीं से आ जाए किसी भी सेंटेंस में और पूछे ये क्या है, आप बताएंगे कुन्नियत है। इब्न मने बेटा, बिन्त मने बेटी, अबू मने बाप, अबी मने बाप, और के माना माँ, और अम मने चचा या फूफू, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अब इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, याद रखिएगा, ये 6 साथ में रखिएगा। इम्तिहान में एक क्वेश्चन आएगा कि वह नाम जो किसी शख्स के अच्छाई या बुराई के बिना पे आवाम से दिया जाए, उस नाम को क्या कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, मैं सब बना कर दिखा दूंगा आपको। वो नाम जो इंसान के किसी अच्छे या बुरे नाम के बिना पे आवाम से मिले, उसे क्या कहते हैं, तो बोलेंगे आप, विकल्प ये होगा, खिताब, लक़ब, उर्फ़, तख़ल्लुस, ये 5-6 में से आपको 4 विकल्प भी देगा और पूछेगा बताओ आवाम की तरफ से किसी इंसान के अच्छे या बुरे काम के बिना पे जो नाम रखा जाता है या नाम मिलता है, उसे क्या कहते हैं, तो बोलेंगे उसको हम लक़ब बोलते हैं। ठीक, फिर सवाल आएगा कि हुकूमत, हाकिम हुकूमत या बड़े लोगों की तरफ से एजाज़ के तौर पे जो नाम मिलता है क्या कहते हैं, तो बोलेंगे उसको हम खिताब बोलते हैं। ठीक है, असली नाम को क्या बोलते हैं, तो अलमे ख़ास बोलते हैं। ठीक है, और जिस नाम से इंसान दुनिया में मशहूर हो जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलेंगे उर्फ बोलते हैं। ठीक है, शायर अपने असली नाम से हटकर छोटा नाम जो आखिर में रखता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे तखल्लुस बोलते हैं। टीक मारते रहना है। जिस नाम से, जिस चीज़ से किसी चीज़ का रिश्ते का पता चलो, चाचा का, बेटा का, भतीजे का, माँ का, बेटी का, उसे क्या बोलते हैं, उसे कुनियत बोलते हैं। यकीन कहता हूँ कि आपने वीडियो को 1 से 2 बार अगर सुन लिया तो फिर आपको इंशाल्लाह रटना नहीं पड़ेगा, समझ में बात पूरी आ जाएगी। फिर एक बार और इसको रिकर देता हूँ, ध्यान सुनिएगा कि अलम की 6 किस्में हैं। अलम के माना होता है नाम, यानी अलम उस नाम को कहते हैं जिसको असली नाम कहते हैं, जिसको माँ बाप ने किसी उस्ताद से, एक बुजुर्ग से रखवाया है, उसे बोलते हैं अलम ख़ास। एग्जाम्पल नसीम। अब नसीम अच्छा काम किया, अच्छे काम के बिना पे हुकूमत, हाकिम या बड़े लोगों की तरफ से एजाज़ के तौर पे, इनाम के तौर पे जो नाम दिया था उसे बोलते हैं क्या, खिताब। और उसी नसीम को, इसी इंसान को अगर उसके बुराई या अच्छाई के बिना पे आवाम से जो नाम मिलता है उसको लक़ब कहते हैं। और इंसान जिस नाम से मशहूर हो जाए, जिसे लोग जानते हैं, हम गाँव में नाम है इरशाद नाम है, लोग आपको लंगड़ा लंगड़ा बोलते हैं। कौन इसका, कौन इरशाद, तो लंगड़ा इरशाद, तो लंगड़ा से हो गए। कान्हा इरशाद, तो कान्हा से मशहूर हो गए। बबलू, तो बबलू से, जिस नाम से आप मशहूर हो जाएं इलाके में, समाज में, माहौल में, माशरे में, उसे हम उर्फ बोलते हैं। और जो शायर अपने असली नाम से हटकर छोटा नाम रखता है उस नाम को हम तखल्लुस बोलते हैं। डिफिनेशन को ध्यान में रखिएगा आप। और जिस नाम से रिश्ते का पता चले
باپ کا، بیٹے کا، چچا کا، بیٹی کا، ماں کا، اس کو ہم کنیت بولتے ہیں۔ آئی ہوپ، میں یقین کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ بس آپ سے ادب گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا تاکہ اور حوصلہ بڑھے اور میں اس سے اچھی انداز میں ویڈیو بنانے کی کوشش کروں۔ پھر ملتا ہوں دوسری ویڈیو میں، تب تک کہ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔